Good morning, students. So, welcome to the second part of this chapter, Nationalism in Europe. Before we start today's class, let me tell you the meaning of the topic. In this chapter, we already discussed the meaning of nationalism, right? Now, I am going to show you the map of Europe so that you can easily understand that in which region of the world experience the feeling of nationalism, right? So let's move to the map of world. So look at this. This is our beloved country, India, right? So from India now we will move towards Europe, right? So I am searching here Europe. So you can see here we are moving towards west, right? So now let me mark for you. So in class 9th you read about this is France, right or not? Look at here the picture. ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्रांस है. सो लेट मी जूम इट. देखो now this part is France. Here it is England or United Kingdom, you can say. This is Spain, Italy, Australia, Poland, Belarus, Hungary, Serbia, right? So almost this whole part from here, this all part, right? Then till the territory of Russia, right? Then this whole part comes under Europe. Okay, so these all are the European country, right? So we will talk about all these country, right? Not all these country, we will talk certain important countries. Like in this chapter we are going to talk about France. Last time भी हमने डिस्कस किया फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आई. देन वी विल टॉक अबाउट जर्मनी, राइट? वी विल टॉक अबाउट ग्रीस, राइट? यहाँ है देखो, राइट? हम इटली के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, राइट? देन जर्मनी इज समवेयर हियर. ओके, दिस वन देखो. सो दिस इज जर्मनी, राइट? सो हम इन सारी कंट्री के बारे में बात करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव टू द पावर पॉइंट. So the first country we were discussing about France, right? So in that last topic we discussed how this French Revolutionary created the idea of collective belonging among the citizens, right? Now let's move to the a new era of France, that is the age of Napoleon Bonaparte, right? So look at this picture. This is Napoleon Bonaparte. So all of you know, if you don't know, I am going to tell you that this Napoleon Bonaparte was a military officer in France from 1789 to 1799, right? And he led different types of wars against the different monarch people, right? So when this 1789 in France, when this revolution broke out, what happened? This was the first country in Europe which experienced the liberty. फ्रांस एक पहली कंट्री थी यूरोप की जहां पर की लिबर्टी आया था और फ्रीडम आया था. नाउ द विजन ऑफ
फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वाज कि अब जो हमारा कंट्री आज़ाद हो चुका है, लिबर्टी हमें मिल चुकी है, तो इन्होंने कुछ विजन सोचा कि अब हमें क्या करना है, वी विल लिबरेट अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोटिज्म? सिंपली जहां पर कि किसी किंग का रूल हो, राइट. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी का, कि फ्रांस के टेरिटरी के बाहर जितने भी कंट्री हैं जहां पर मोनार्की है, हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर भी फ्रीडम लेके आएंगे, लिबर्टी लेके आएंगे. पहला विजन. सेकेंड, so to fulfill this vision, they started setting up Jacobin clubs in different cities of Europe. So जो बड़ी बड़ी cities थी, ठीक है, इटली की, जर्मनी की, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी cities थी वहां पर उन्होंने जैकबिन क्लब्स सेटअप करना शुरू किया. So you know what is Jacobin clubs? This is a group of revolutionary during the French Revolution. Now, the responsibility of carrying the idea of nationalism was put on the shoulder of armies, French armies, right? So French armies ने क्या करना शुरू किया, फ्रांस के बाहर जाके दूसरी कंट्री के मोनार्क के साथ लड़ाई लड़ना शुरू किया, राइट और नॉट, जिसमें कि कौन था, एक नेपोलियन बोनापार्ट भी था, राइट. सो नेपोलियन बोनापार्ट spent their life for 10 years in military, and in 1799 he became the ruler of France, and he ruled till 1815. That means he ruled approximately 16 years. ठीक है. This Napoleon Bonaparte was very, you can say, very ambitious leader, right? काफी ज्यादा बहादुर भी था और ambitious भी था. ये चाह रहा था कि पूरा का पूरा जो यूरोप है, नॉट ओनली यूरोप, इवन एशिया वाले पार्ट को भी अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था, राइट. एंड ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस, or he wanted to free all this country from the monarchy. So नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया 1799 से 1815 तक, हम उसको देखेंगे. सो जैसे ही 1799 में ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी. सो आफ्टर 1789 इन फ्रांस डेमोक्रेसी आई थी, राइट और नॉट, लोगों को वोटिंग राइट मिला था. बट जब ये 1799 में कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, इसने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी. इसने डेमोक्रेसी को वहां से फ्रांस से हटा दिया, लोगों को वोटिंग राइट देना बंद कर दिया, राइट. सो दिस नेपोलियन बिकेम द ऑटोक्रेट, राइट. ये वहां का क्या बन गया, एक तरह से ऑटोक्रेट बन गया, या फिर यू कैन से डिक्टेटर बन गया, राइट. वहां का डिक्टेटर बन गया. ओके. But one thing was good in Napoleon Bonaparte. He was a great administrator, right? And he took a great administrative reforms. So फ्रांस में इसने क्या किया, काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए, कई सारी चीजें जो पहले से खराब थी उसको सही किया. वो क्या क्या चीज था, हम इसको दो पार्ट में देखेंगे. पहला हम देखेंगे कि इसने सोसाइटी में क्या ये रिफॉर्म किया, और दूसरा हम देखेंगे इसने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म किया. तो सबसे पहला हम बात करते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट एक ऑर्डर पास किया. उस ऑर्डर का नाम था सिविल कोड ऑफ 1804, और इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, राइट. इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं. सो इस कोड में क्या क्या प्रोविजंस लिखे थे, राइट. जो मेन प्रोविजंस था हम वो डिस्कस करेंगे कि आखिर नेपोलियन क्या करना चाहता था फ्रांस के सोसाइटी के साथ, राइट. सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, ही अबॉलिश्ड द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ. सबसे पहला तो उसने जो भी थोड़ा बहुत जो प्रिविलेज मिल रहे थे लोगों को, वो बिल्कुल खत्म कर दिया, राइट. सेकेंड थिंग उसने क्या कहा, ऑल द पीपल आर लिविंग इन द आवर कंट्री
are equal before law. That means everybody have to follow the law of the land. So whatever law is there in France, वो सभी लॉ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. ये था दूसरा प्रोविजन ऑफ नेपोलियनिक कोड. थर्ड प्रोविजन, he told that the right to property will be secured. Whatever property you have, right, it will not be snatched by the government. जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपका ही रहेगा, राइट और नॉट. ये तीसरा प्रोविजन उसने नेपोलियनिक कोड में किया. फोर्थ वन, he told that abolition of serfdom. What is the meaning of serfdom? सर्फडम का मतलब होता है गुलाम, स्लेव्स, यू नो. ठीक है, लोगों को खरीद के अपने खेत में काम कराने का, बिल्कुल फ्री में, राइट और नॉट. सो इसको सर्फडम कहते हैं. दैट मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर लेबर पर्पस. ठीक है, तो कई सारे लोग वहां पर क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स होते थे उसको खरीदा जाता था, राइट और नॉट. तो ये अबॉलिश कर दिया था किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने. इसने कहा कि द स्टेट विल बी सेक्युलर. जो हमारी कंट्री फ्रांस है ये क्या होगी, सेक्युलर होगी. यहाँ पर कोई भी रिलीजन का लोग रह सकता है, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, राइट. दिस वाज द अनदर प्रोविजन. अपार्ट फ्रॉम दिस, ही गेव द राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू वुमेन, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? यू नो दैट फादर जो होते हैं, फादर के अगर दो सन है, टू सन, राइट. टेक एन एग्जांपल, सन ए बी और वन डॉटर है. तो जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिर्फ सन में डिवाइड होता है, राइट और नॉट, है ना. लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो जो गर्ल चाइल्ड है उसको भी देना चाहिए, राइट और नॉट. फादर को बराबर बराबर इक्वल भाग में डिवाइड करके तीनों को देना चाहिए, राइट और नॉट. जो भी उसके बेटे और बेटी हैं सभी को बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, राइट और नॉट. So this provision was included by Napoleon Bonaparte. So for your information, let me tell you that in India also in 2005 government passed an order, right. That order is known as Hindu Succession Act, right. This act says that whatever land is with the parents or the father, right, this land will be divided equally among the children's irrespective of gender. ठीक है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, बेटा हो या बेटी हो, सभी को बराबर प्रॉपर्टी मिलना चाहिए. इफ सम डॉटर इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर्टी, सी कैन फाइल अ केस, राइट. कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, राइट और नॉट, सो दैट सी कैन ऑल्सो गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. This is the, you can say all these reforms by Napoleon are social reforms, right, because all these are something related with society, right. Come to the next, that is the administrative reform. That means, what is the meaning of administrative reform? Reforms related to administration. That means जो हमारा कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि उसको डे टू डे में कैसे चलाना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसको उसने कैसे रिफॉर्म किया, हम वो देखेंगे. So the first thing he did to reform the administration, he simplified the administrative divisions. What does it mean? उसने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट वहां का डिक्टेटर है, ठीक है, तो उसके नीचे कौन होगा काम करने वाला, राइट, डिफरेंट पीपल. या फिर कोई एक पीपल है वो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए काम कर रहा है, तो इसका कितना पावर होगा, ठीक है, इसके पास क्या पावर है, राइट और नॉट, इसके पास क्या पावर है, ये सब कुछ सेपरेटली उसने मेंशन किया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया ताकि लोगों को भी समझ में आ सके कि किसका क्या काम है, राइट. सो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें अभी के डेट में, देखो हमारा भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड वर्जन में है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट और नॉट, उसके बाद
हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, एक डीसी होता है। डीसी का काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। वहीं पर एक एसपी भी होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर देखती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, राइट और नॉट। कोई लोग डिस्ट्रिक्ट में तालुकदार होता है, ये लैंड से रिलेटेड मैटर देखता है, राइट और नॉट। सो हर एक ऑफिशियल्स का कुछ ना कुछ काम जो है वो डिसाइडेड होता था, राइट। और ये बिल्कुल सिंप्लीफाई वर्जन में था, लोगों को भी समझ में आता था कि किसका क्या काम है, राइट और नॉट। दिस वाज डन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, he abolished the feudal system and freed peasant. What is the meaning of feudal system? जो जमींदारी सिस्टम होता था, वहां पर कई सारे बड़े बड़े जो पीजेंट्स होते थे, वो कई सारे लोगों को अपने खेत में काम कराते थे, वो भी बिल्कुल फ्री, सिर्फ खाना देते थे खाने को, राइट और नॉट, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि कई सारे पीजेंट्स को जो ड्यूज होता था, राइट, कई सारे ऐसे छोटे छोटे लेबरर्स होते थे जो बड़े बड़े पीजेंट से पैसे लेते थे। टेक एन एग्जाम्पल कि ये कोई एक पीजेंट है, इससे उसने कुछ पैसे लिए उधार 1000 रुपीज। इफ दैट लेबर इज नॉट एबल टू पे दिस 1000 रुपीज, तो ये पीजेंट क्या करता था, उसको अपने खेत में काम कराता था, राइट और नॉट। सो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ सर्फडम, राइट। सो ये जो ड्यूज रह जाते हैं, इसको हम मनोरियल ड्यूज बोलते हैं, राइट और नॉट। द ड्यू विच इज हेल्ड विथ लेबर, ठीक है, ऑफ पीजेंट्स, जो बिग पीजेंट्स होते हैं उसके जो कर्ज रह जाते हैं उसको मनोरियल ड्यूज बोलते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। जो पीजेंट्स किसी के अंदर काम कर रहे थे स्लेव के तौर पर, या फिर जो सर्फडम थे, दैट मीन्स जो स्लेव्स थे, उनको भी उसने क्या कर दिया, आजाद कर दिया। और जो भी ड्यूज था, पैसे जो बाकी थे, वो भी माफ कर दिया, राइट और नॉट। देन he also removed the guild restriction. What is the meaning of guild restriction? ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वट एवर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वाज देयर, उसको भी इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। देखो मान लेते हैं कि अगर अभी कुछ ऐसा हो जाए हमारी कंट्री में कि दिस इज कोप्पल, राइट, इफ सम शॉपकीपर वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन गडक, राइट, टेक एन एग्जाम्पल, ये कोप्पल है, ये गडक है। तो ये शॉपकीपर जब यहाँ से कोप्पल से गडक जा रहा है, तो बीच में जब बॉर्डर आता है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गडक का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो खड़े होके कोप्पल के जो ट्रेडर्स है उससे पैसे मांग रहे हैं। टेक एन एग्जाम्पल, उसके पास 100 रुपीज का सामान है, तो गडक के लोग क्या बोल रहे हैं, गडक के जो पुलिस ऑफिसर है वो बोल रहे हैं कि आपको 50 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या है, व्हाट इज इट, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड, राइट और नॉट। अब ये जो शॉपकीपर है, इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट और नॉट, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट और नॉट। सो उस समय ये सारी चीजें फ्रांस में होती थी। कई बार ऐसा होता था कि एक टेरिटरी से, कोई एक जगह है, कोई दूसरा जगह है, यहाँ से कोई शॉपकीपर या ट्रेडर आता था इधर, तो इसको अलाउ नहीं था, यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट टू टेरिटरी बी, ठीक है, इस जगह पर आकर आप सेल नहीं कर सकते। तो ये सारा क्या है, फॉर्म ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। सो गिल्ड का मतलब आई टोल्ड यू ट्रेड, राइट। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो उस कंट्री की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी, रोडवेज था, राइट और नॉट, और वहां पर जो व्हीकल्स थे, राइट और नॉट, ये सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, बिल्कुल अच्छा कर दिया, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। He placed uniform law, standardized weight, measures and common national currency. सो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक करेंसी लॉन्च किया, एक जैसा वेइंग सिस्टम लॉन्च किया, राइट। वहां पर जो लॉज थे वो यूनिफॉर्म थे। सो दीज आर द थिंग्स डन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट विच इज वेरी गुड इन नेचर, राइट और नॉट, बिकॉज इन सारी चीजों से क्या हुआ, लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा, राइट। नाउ so after taking this type of reform, now Napoleon Bonaparte wanted to expand its territory. नेपोलियन बोनापार्ट क्या चाहता था कि हम फ्रांस से भी बाहर निकले, राइट। सो अब देखो ध्यान से कि फ्रांस की जो टेरिटरी है आज के डेट में, राइट, वो टेरिटरी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट फ्रांस का है,
आज का फ्रांस जो है ये वाले टेरिटरी से छोटा है, वो समथिंग लाइक दिस रीजन, इतना बड़ा फ्रांस है, ये वाला फ्रांस है पूरा, राइट। अब देखो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी। इसने क्या किया, आर्मी को भेजना शुरू किया, आसपास वाले रीजन में जितने भी किंग थे, राइट, इसको डिफीट कर दिया। ये वाला पार्ट जो है बेल्जियम का है, अभी अभी प्रेजेंट डे में ये बेल्जियम है, राइट। सो फ्रांस की जो सॉरी जो रूलर था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने क्या किया, ये सारी टेरिटरी को जीत लिया। यू कैन सी दिस ऑल द डार्क ब्लू कलर, these territories are won by Napoleon Bonaparte. So this whole territory is called Napoleonic Empire. अब देखो ये जो लाइटर कलर से है, देखो कितना पावरफुल था नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो लाइटर कलर का है, यहाँ पर ये डिपेंडेंट स्टेट थे ऑन नेपोलियन। डिपेंडेंट स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर किंग तो था, कोई दूसरा किंग तो था, बट ही वाज फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। सो फ्रांस की जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसने सभी को धमकी देकर रखा था कि अगर तू मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, राइट और नॉट। देन some of the states were allies of Napoleon. allies मतलब वैसे स्टेट्स जो इसके साथ फ्रेंडशिप करके थे, किसके साथ, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, राइट। सो तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जो ब्लू कलर है ये है, इसका मतलब है कि नेपोलियन यहाँ पर डायरेक्ट रूल कर रहा है, ठीक है, जो नेपोलियन बोलता है वो यहाँ पर होता है। डिपेंडेंट स्टेट का मतलब होता है कि ये सारे स्टेट्स बिना पूछे, नेपोलियन बोनापार्ट से बिना कुछ पूछे कोई अपना स्टेप नहीं ले सकता है, कुछ भी करने से पहले वो नेपोलियन बोनापार्ट से पूछता है, राइट और नॉट। सो दे आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सिर्फ ये समझ लो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बोला यहाँ के किंग को कि ठीक है मैं आपको ये टेरिटरी दे रहा हूँ, आप इस पर रूल करो, लेकिन यू हैव टू रूल अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर, राइट। सो सिंपली यू कैन से द किंग ऑफ दिस टेरिटरी आर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द नेपोलियन बोनापार्ट। Then these are the allies of Napoleon, that means they are friend, right. They promised the Napoleon Bonaparte ki we will never attack on France, as well as whenever they need, that means the Napoleon Bonaparte need the support of this territory, he will give support to the Napoleon Bonaparte. So you can see कि almost whole this region was under the control of Napoleon Bonaparte, right or not, directly or indirectly. So you can see this is a huge territory. This is the Europe of 1812. कब का यूरोप है, 1812 का ये यूरोप है। सो ये रेड वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। अब हम देखते हैं कि ये जब कंट्री, फ्रांस जो कंट्री थी या नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जब ये सारे लोगों को कंट्रोल में कर रहा था तो लोगों का क्या मानना था। टेक एन एग्जांपल कि ये फ्रांस है, राइट, और फ्रांस की आर्मी क्या कर रही थी, इस स्टेट में जा रही थी, राइट, मोनार्की को खत्म करने। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्या ये लोग अपोज करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट डू यू नो दैट दीज पीपल वर नॉट अपोजिंग द नेपोलियन बोनापार्ट, द कॉमन पीपल ऑफ दिस टेरिटरी वर नॉट अपोजिंग द नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। आज अगर हमारी कंट्री इंडिया में अगर पाकिस्तानी फोर्स अगर इंटर करे तो हम अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वी विल अपोज द पाकिस्तानी फोर्स। बट एट दैट टाइम द पीपल ऑफ दिस रीजन वर नॉट अपोजिंग नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की जब आर्मी इस कंट्री में इंटर कर रही थी तो यहाँ के जो कॉमन लोग थे, यहाँ के जो कॉमन लोग थे, दे वर नॉट अपोजिंग द आर्मी ऑफ फ्रांस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, because the people of this region, right, all the blue color area dependent state, the people of this region, they thought that this Napoleon is the harbinger of liberty. इनको क्या लग रहा था कि नेपोलियन जिस तरह से फ्रांस में फ्रीडम लाया, लोगों को इतना अच्छा अच्छा चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए फ्रांस में, वैसा ही सिस्टम हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर नेपोलियन इस रीजन को कंट्रोल कर ले तो, राइट।
तो सिंपली यहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो किसके खिलाफ थे? अपने राजा के खिलाफ थे, इसका जो पहले किंग था उसके खिलाफ थे, राइट और नॉट? तो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर एंटर कर गया, राइट और नॉट? और इन्होंने कॉमन पीपल की मदद से वहां के किंग को डिफीट कर दिया, ये सारे रीजन के किंग को डिफीट कर दिया, राइट? सो हम बात करेंगे व्हाट वाज द रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द एरियाज कंकर्ड, राइट? नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस एरिया को कंकर्ड किया, राइट, उसका रिएक्शन क्या था टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ नेपोलियन? सो एक बार फिर से हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि जब ये नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर इंटर कर रहा था इन दिस रीजन, what was the reaction of the people who were living in this area? What was the reaction of the people who were living in this area? ठीक है, सो उसी का आंसर है यहाँ पर। चलो देखते हैं। Initially, the French army were welcomed. ठीक है, the people of other country they welcomed the French army. Why they welcome? Because they thought that the Napoleon army is the harbinger of liberty. उनको क्या लगता था कि जब नेपोलियन की आर्मी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा? फ्रीडम होगा, राइट? यहाँ पर भी क्या होगा? फ्रीडम होगा। But soon it became hostility as the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. अब देखो, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट दूसरे कंट्री में गया, राइट, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो लोगों को पसंद नहीं आए, दूसरे कंट्री के लोगों को पसंद नहीं आए। क्या पसंद नहीं है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ही वाज वेरी मच एम्बिशियस टू विन द होल यूरोप। तो विन कैसे करेगा, जीतेगा कैसे यूरोप को? क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मनी, राइट? पहला क्या चाहिए? मनी चाहिए। वार में मनी खर्च होता है ना, वार के लिए क्या चाहिए हमें? पहला तो मनी चाहिए, सेकंड क्या चाहिए? मैन पावर, दैट मीन्स जो लड़ाई करेंगे आर्मी, राइट? सो जैसे ही नेपोलियन दूसरे कंट्री में गया, उसने क्या किया? ही इंक्रीज द टैक्स ऑन द पीपल। सबसे पहला चीज उसने किया। दूसरा चीज उसने क्या किया? ही फोर्स द पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। जो दूसरी कंट्री के लोग थे, जो बेल्जियम के लोग थे, जो स्विट्जरलैंड के लोग थे, उनको उन्होंने फोर्स किया कि फ्रेंच आर्मी को क्या करो, आप ज्वाइन करो। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? ये सारी चीजें देख के लोग क्या हो गए? बिल्कुल नाखुश हो गए, राइट? तो लोगों का रिएक्शन क्या था? पहले तो उसने वेलकम किया, बाद में बिकॉज ऑफ द स्टेप्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? वहां पर सेंसरशिप भी लगा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप? सेंसरशिप का मतलब होता है कि इफ दैट कंट्री और इफ द मीडिया वांट टू पब्लिश एनीथिंग, right, he had to take the permission from Napoleon Bonaparte, right? The media of that country cannot criticize the Napoleon Bonaparte, right? So ये तीन चीज की वजह से लोगों को ये समझ में आ गया कि नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स तो लिया है, लेकिन हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, राइट और नॉट? हमें फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? चाहे नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर रोड अच्छे कर दिए, राइट, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स ला दिए, लेकिन हमें कई सारे चीज ऐसे हैं जो कि हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो लोगों ने धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी कैसे ट्रीट करती थी दूसरे कंट्री के लोगों को। देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ जर्मनी, राइट? जर्मनी की ये पिक्चर है और ये जगह का नाम है ज्वेपरकन कैन, राइट? यहाँ पर देखो कई सारे फ्रेंच आर्मी हैं। दिस ब्लू कलर पीपल, राइट, जिसने ब्लू कलर के, सॉरी,
ये ब्लू कलर जो का ड्रेस जो पहना है इसने, रेड कलर का जो ड्रेस पहना है, राइट, ये सारे लोग कौन है? फ्रेंच की आर्मी है, फ्रांस की आर्मी है। दिस पेंटिंग वाज पेंटेड बाय कार्ल कास्पर, राइट, ठीक है, जो कि जर्मनी के एक टाउन में इसने इस पेंटिंग को बनाया था। इसने फ्रेंच सोल्जर को दर्शाया है ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में, ठीक है, ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में। देखो यहाँ पर ये ब्लू है, अंदर व्हाइट पहना है, कुछ आदमी रेड यूनिफॉर्म में है, राइट। इनको दर्शाया है एज अ ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब क्या होता है? जो सप्रेस करते हैं, राइट और नॉट, लोगों को सप्रेस करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला तो इसने दिखाया है कि वन फ्रेंच आर्मी सीज द कार्ट्स ऑफ पीपल, पीजेंट, राइट। तो यहाँ पर देखो एक फ्रेंच की आर्मी ने क्या किया है, वहां के एक पीजेंट का जो है कार्ट, जो बलक कार्ट होता है या फिर हॉर्स कार्ट होता है, इसको छीन लिया है, राइट। दूसरा, किसी वुमेन को हरास कर रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला फोरग्राउंड में, राइट, ये फ्रेंच आर्मी है। यहाँ पर देखो दिस फ्रेंच आर्मी इज हरासिंग दिस वुमेन, राइट। वन फ्रेंच आर्मी इज फोर्सिंग वन पीजेंट टू डाउन ऑन हिज नी। देखो यहाँ पर ये जो फ्रेंच आर्मी है ये क्या कर रहा है, एक पीजेंट को घुटने पर बैठने के लिए बोल रहा है, राइट। और साथ में ही यहाँ पर एक ट्री ऑफ लिबर्टी ये लोग लगा रहे हैं। कौन? फ्रेंच आर्मी ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कौन बोल रहा है? फ्रेंच आर्मी बोल रहा है। कितना गलत गलत कर रहा है, यू कैन सी हियर, बट दे आर सेइंग कि हमसे क्या लो? फ्रीडम और इक्वालिटी लो, ठीक है। हम लोग क्या है? ह्यूमैनिटी के मॉडल है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पिक्चर बनाया गया था ये नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर टॉन्ट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। यू कैन से व्यंग, हिंदी में एक वर्ड होता है व्यंग करना, राइट और नॉट, ठीक है, मॉकरी करना। यू कैन से मॉकरी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ क्या कहता है कि हमसे फ्रीडम लो और इक्वालिटी लो, और दूसरी तरफ इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं, राइट और नॉट, ठीक है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। So basically this painter wanted to show that how the people are suffering in the reign of Napoleon Bonaparte, right? So what happened now? So Napoleon Bonaparte was on his peak point at 1812, ठीक है। जब 1812 का ईयर था उस समय नेपोलियन बोनापार्ट काफी ज्यादा टॉप पर था। उसका जो टेरिटरी था वो एक्सपेंड हो चुका था। मैंने मैप में दिखाया कि कहाँ कहाँ तक वो पहुंच चुका था। बट हिज एडवांसमेंट टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप एंड रसिया डिड नॉट लाइक्ड बाय अदर मोनार्क। कुछ ऐसी कंट्री थी जो नेपोलियन बोनापार्ट को पसंद नहीं कर रहा था। कौन कौन? ब्रिटेन था, रशिया था, राइट, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये सारी कंट्री क्या कर रही थी? इनके एडवांसमेंट को लाइक नहीं कर रहा था रशिया, ठीक है। दैट मीन्स इस तरह इतना ज्यादा जो एग्रेसिव ये नेपोलियन बोनापार्ट था, ये दूसरे के टेरिटरी को जीत रहा था, ये दूसरे कंट्री के राजा को पसंद नहीं आ रहा था, राइट। सो एक 1830 में सक्सोनी नाम का एक जगह पर एक बैटल हुआ जिसको हम बोलते हैं लाइपजिग, राइट, बैटल ऑफ लाइपजिग, राइट। ये कहाँ पर है? एक सैक्सोनी नाम का एक जगह है, वहां पर ये बैटल हुआ था। इस बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया? हार गया, राइट। सो दिस पिक्चर इज शोइंग दैट व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ 1813, ठीक है, वो वापस घर जा रहा है। और घर जाते समय ये जो जितने भी इनको शो किया गया नेपोलियन बोनापार्ट को एज अ पोस्टमैन, एज अ कुरियर, और उसके बैग से ये सारे चिट्ठी गिर रही है। ये हर एक चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है टेरिटरी का, राइट। इट इज द नेम ऑफ टेरिटरी। सो बेसिकली इट इज शोइंग दैट कि नाउ नेपोलियन बोनापार्ट इज लूजिंग देयर टेरिटरी। क्यों? क्योंकि 1813 में वो बैटल हार गया। हारने की वजह से क्या हो गया? धीरे धीरे
नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी टेरिटरी को जीता था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो दूसरे कंट्री के पास जाने लगा, राइट और नॉट। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हार जाओगे तो आपका टेरिटरी क्या होगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना। फाइनली इन 1815 one battle was fought between Napoleon Bonaparte and between the allies of British Persia and Austria, राइट। ये तीनों कंट्री मिलके, इन तीनों ने बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, ये बेल्जियम में है एक जगह, राइट। यहाँ पर इसने नेपोलियन के साथ लड़ाई की और नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, एंड नेपोलियन बोनापार्ट वाज अरेस्टेड एंड ही वाज डाइड। सो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया, मर गया, राइट। अब जैसे ये वॉर खत्म हुआ, एक ट्रीटी साइन की गई, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। सो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हमने जो स्टोरी देखा फ्रांस का, हम इसको एक साइड में रखेंगे, राइट। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सिर्फ एक स्टोरी है ऑफ फ्रांस, राइट। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप, ठीक है। तो आज हमने, अभी तक हमने दो पार्ट में एक कंट्री को कंप्लीट किया है, ठीक है, इसको अभी हम यहीं रहने देंगे पहले, फिर उसके बाद हम सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे यूरोप का, फिर हम फिर वापस से इस फ्रांस पर फिर वापस से आएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राइट, वी विल मीट टुमारो।